میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بلاسفیمی، آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ کی بلاسفیمی کے اوپر کیا سزا ہے؟ رسول اللہ کی بلاسفیمی کے اوپر سزا؟ نہیں، سزا تو کوئی بھی نہیں ہے مجھے جہاں تک معلوم ہے. سزا کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں، ہم اچھا، لوگ کو جو یہ کہا جتنے جاتا ہے کہ نہیں، ہم ہاں لوگ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب گستاخی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو اس کو سمجھانا چاہیے پراپرلی کہ وہ نہ کرے. اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتا تو اس کو اوپر لعنت بھیجنی چاہیے اور اس کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور جو بھی مطلب گورنمنٹ کے تھرو پاسبل ہے اس کی کاروائی کرنا چاہیے. سر، یہ کون سے مولوی سے سنا آپ نے؟ سر مولوی تو اچھا، مطلب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب کیا سزا ہے نہیں نہیں، اسلام کی آپ خاطر، آپ کون کو سے پتا ہے؟ مولوی سے سنے یہ بات؟ اتنی پیاری بات کون سے مولوی نے کی ہے؟ مطلب ہم لوگ کے تو مطلب گھر پہ مطلب استاد آ کے ہمیں پڑھاتے تھے قرآن، اور ساتھ میں حدیث وغیرہ بھی. ہوں. ان کا کیا اچھا، نام، ان کا نام جاننا ہے آپ آپ کو؟ ہندوستان سے ہیں؟ جی میں ہندوستان سے ہوں. اوکے. آپ کو کنہیا لال کا کیس معلوم ہے؟ کنہیا لال کا؟ نہیں سر. دو جہادی یہ نے مسلم تھے؟ اس کا، نہیں کنہیا لال تو مسلم نہیں تھے، لیکن جو ان کا جو گلا کاٹا تھا وہ دو جہادی مسلمان تھے. جی جی سر مجھے پتا ہے، وہ ٹیلر شاپ کا نا؟ ٹیلر شاپ کا، جی. جی جی مجھے پتا ہے سر یہ. ہے نا؟ تو اور آپ کے جی جو سارے مولوی حضرات ہے، کئی ساری ویڈیوز آپ کو ابھی دکھا دوں گا. مجھے پتا نہیں آپ اتنے انوسینٹ کیسے کہ آپ کو یہ بات پتا نہیں ہے. آپ کے سارے مولوی جی حضرات نہیں، تو مجھے یہی مجھے کہتے ہیں. مجھے پتا ہے مطلب. اب دیکھیے، آپ نے پی کے تو دیکھی ہوگی، آپ کو پتا ہے مطلب بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مطلب غلط چیز بولتے ہیں جیسا کہ رانگ نمبر. تو ہم کو تو مطلب وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ وہ ڈیوائڈ کرے اپنے مطلب اپنے دھندے کو چلائے. تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ اسلام ہر چیز اسلام کے تھرو دیکھنا چاہیے. اسلام میں ایسا کہیں نہیں بالکل لکھا آپ ہوا کی نہیں بات، ہے کہ کوئی مشکل نہیں. ہم پھر ابھی عالم کے پاس نہیں جائیں گے، کوئی مشکل نہیں. مجھے بتاؤ کہ کسی کی بلاسفیمی پر کسی کو قتل کر دینا یا اس کو اپروو کرنا، اس کو اچھا کام سمجھتے ہیں اب یا برا کام سمجھتے ہیں؟ قتل تو دور کی بات ہے. آپ کو مطلب اگر بہت ساری حدیث ہے، لوگ پہلے کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر کچرا پھینکتے تھے، ان کو گالی دیتے تھے، ان کے ایک اوپر دے دو، تھوکتے بھی ایک تھے. دے دو، ایک حدیث دے دو. تم نے کہا بہت اور ساری ہیں. ان کو آپ کو طائف میں ارے پتا بھائی آپ ہوگا نے کہا شاید بہت کہ ساری ہیں، پتھر بھی. ایک دے دو. ارے بھائی آپ نے کہا بہت ساری ہیں، ایک دے دو. واللہ حبیبی ساحل صاحب، یار یہ کیا زبردست بھائی ہیں. مجھے سر ہاں آج تو میری بھائی، دلی اچھے تمنا بھائی ہے. پوری ہوگی. ساحل بھائی میری دلی تمنا اچھا پوری ہوگی. آج مجھے یہ آپ حدیث مجھ مل سے کے بات کر رہے رہے گی. ہیں؟ ساحل لالا بھائی جی آج نہ آپ مجھے یہ مانگیے، حدیث چینج ہوگی مل تو کے میں رہے گی. نہ مانگیے لالا جی، ہار جائیں گے، وہ ابھی دے دے گا، نہ مانگیے. میں سر بےعزتی ہو میں جائے آج میری دلی تمنا پوری ہوگی ساجد بھائی. مجھے یہ حدیث ملے گی کہ نبی کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا تھا. واللہ گی حبیبی. لالا جی. وہ دے دے گا، وہ بندہ بہت چلا کے دے دے گا، پھر آپ ہار جائیں گے. نہ ایسا یار نہ کریں، نہ مانگیے. میں آج تو سر میری دلی نہیں ہے، تمنا دیکھیے ساجد بھائی میں پوری ہو رہی ہے. ساجد بھائی دلی تمنا. چلیے، مجھے آپ کو جب ایگزیکٹلی آگ میں ریفرنس کودنا ہی ہے وغیرہ تو تو کود. پتا نہیں ہے. آپ لوگ بات کر رہے ہیں ایک ساتھ تو مطلب وائس پراپرلی نہیں آ رہی ہے. مجھے ایگزیکٹلی ریفرنس نمبر وغیرہ تو پتا نہیں ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں سرچ کر کے بتا سکتا ہوں، لیکن 1-2-3 منٹ ٹائم لگے گا. لیکن جیسا کہ ابھی تک آپ کو یہ 2-3 منٹ ساحل سر بھائی آپ کو جو 10 ایکس منٹ مسلم. سر آپ کو 10 منٹ دیتے ہیں. آپ سرچ کریں. اچھا نہیں، 10 منٹ ساحل لیں. بھائی تو پہلے مسلم رہ چکے ہیں نا، تو ان کو پتا ہوگا نا. ارے نہیں ساحل بھائی کو تو ہم کا نہیں نہیں ہے کر پتا کے یار، تو چھوڑیں. پوچھ رہے بھائی. کیا آپ لوگ پلیز ایک ساتھ بات نہیں کریں، ہے مجھے کر سمجھ کے تو نہیں آ رہا. پوچھ رہے. نہیں ہے کر کے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. ہوتا تو کیوں اچھا ٹھیک مانگتے ہے، میں آپ سرچ سے. کر کے بتاؤں آپ کو. ہاں ہاں. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے، 1 منٹ رک جائیے. واللہ حبیبی ساحل بھائی آج سر بچپن کی تمنا پوری ہوئے گی. بڑھیا مل کے رہے گی آج، جو نبی پہ وہی کوڑا بڑھیا پھینکا والی کرتی بات تھی. کر رہے ہیں نا سمیر صاحب، ہاں بڑھیا والی بات کر وہی رہے ہیں تو. نا. آج وہ بڑھیا مل کے رہے گی. لالا جی دیکھیے، آگ میں آپ کود رہے جی ہیں، آپ مطلب جانیے، وہ میں نے کچرا تو آپ پھینکی کو تھی نا، بچانے وہی کے بنے نا لیے آپ لوگ. بولا تھا.
دیکھا ساحل بھائی آج یہ بڑھیا اچھا ان کو ڈھونڈ کے ٹائم دے دیں گے ہمیں. دیتے ٹائم دے دیتے. اچھا یار مارس انکمنگ بھائی نے 50 ممبرشپ گفٹ کی ہے, تو یار جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی وہ یہ دیکھیے یہ سٹیپس بتایا گیا ہے ویشنوی جی کے ذریعے سے. وہ 50 ممبرشپ پہ آپ جو ہے ایک سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 50 گفٹ جو اوپر دکھ رہا ہے اس پہ کلک کر کے الاؤ ممبرشپ فری ممبرشپ کا آپشن انیبل کر لے تاکہ سارے لوگوں کو 50 کی 50 ممبرشپ مل جائے. 50 لوگوں کو 50 ممبرشپ مل جائے. الاؤ آپشن اس پہ کلک کر کے کر لیجیے, آپ کو ممبرشپ مل جائے گی. یہ دھیان سے کریے ورنہ ممبرشپ ویسٹ ہو جائے گی. اچھا ایڈم صاحب یہ دیکھا آپ نے, واللہ حبیبی سر کتنے لوگوں کی سڑی, سر کتنے لوگوں کی سڑی سر یہ بتائیں بہت سر اس لوگ کے یہ بعد کریے. کتنے لوگ آئے کہ یہ تم لوگ اس لیے کام کر رہے اور وغیرہ وغیرہ, یہ لوگ آئے کتنے تھے ہیں وہ بتائیں بس. آئے تھے ایک دو آئے تھے. سر یہ سر ایسے تو نہ ساڑا کریں سر, یہ آپ جان بوجھ کے ایسا کام کرتے ہیں سر. آپ نے اپنے لوگ خود بٹھائے ہوئے ہیں جو اسپیشلی آپ کو ایسے سپر چٹے دیں تاکہ لوگوں کی سڑے. سر یہ آپ کا اپنا یہ آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں ساحل بھائی. دس از یو ڈو اٹ بائی مطلب جان بوجھ کے. کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ پیسہ ہم ہی ان کو دیتے ہیں کہ بھائی آپ سپر چیٹ بھیجو. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ آپ نے اپنے لوگ خود بٹھائے ہوئے ہیں, خود جا کے آپ ان کو پیسے دے دیتے کہ میں سپر چیٹ بھیجو. یہ لالا جی کون میں سا تو کہتا لاجک ہے ہوں, بھائی, لیکن لالا جی میں تو کہتا ہوں کہ دوسروں کو چھوڑیے, خود اپنوں کی بھی بہت سارے لوگوں کی چل چکی ہوگی نا. ہلو واللہ آ حبیبی گیا جی بھائی کو بھائی, ہی جی مل گیا جی بھائی, ریپلائی. جی بھائی, بھائی جی کو مل میں گئی. آپ لوگ کو مطلب آپ لوگ کو لنک شیئر کر سکتا ہوں, کچھ آپ لوگ مجھے اپنا جی میل وغیرہ کچھ دے سکتے ہیں. بھائی آپ حدیث کا نمبر پڑھ دیں, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے حدیث کا نمبر پڑھیں. حدیث کا نمبر نہیں, آپ کو مطلب وہ پورا اتنا بڑا پیج ہے نا, آپ پورا پڑھ لے سکتے ارے ہیں, اس میں اتنا حدیث کا ہم نمبر اتنا بڑا وغیرہ پیج, سب ہے. سر ہمیں صرف حدیث کا نمبر چاہیے جس میں بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی, بس اور تو کچھ چاہیے نہیں ہمیں, ہم تو شریف لوگ ہیں. اچھا اس میں سے اتنے بڑے پیج میں سے صرف آپ نے نکالنا ہے کہ اس حدیث کا کیا نمبر ہے جس میں بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی, بس اور کچھ نہیں نکالنا آپ نے. باقی سب چیزیں کو چھوڑ دیں, گولی مارے باقی سب چیزوں کو. صحیح البخاری ہوں 4/44-2934. اوکے 2934 میں ہے, اور اگر وہاں پہ نہیں ہے ساجد بھائی ذرا کھول دیں سر یہ والی, ایک سیکنڈ میں کمپیوٹر کے آگے نہیں ہوگی. ایک یہ سیکنڈ لیں ایک اب سیکنڈ نہیں ہے, بتائیں دوسرا پھر سے والا سر. ہے. نہیں ایک یہ سیکنڈ نہیں ہے, ایک اوکے منٹ جی یہ نہیں ہے, جی یہ نہیں ہے, نہیں بھائی کو پتا لگ گیا یار یہ نہیں ہے, غلطی ہوگی ان سے. اس پہ آلو پھینکتی تھی وہ والا ہے, میں نے پڑھا تھا اس پہ آلو تھا, کوڑا والا نہیں ہے. نکالیے. کوڑے والا نکالنا ہے, کوڑے والا سر, کوڑے والی بڑھیا. میں آپ کو یہ لنک بھیج دوں گا نا, آپ اس میں دیکھ لو, مجھے حدیث کا ارے اس مطلب لنک میں سمجھ نہیں ہے نا, نہیں ہمیں وہ اس لنک میں نہیں لکھا ہوا ریفرنس, ہمیں پتا ہے اس لنک میں ریفرنس نہیں لکھا ہوا. آپ ریفرنس پڑھیں, ریفرنس ڈھونڈیں, ہم 2-4 اور سپر چیٹوں پہ بات کرتے ہیں. آپ ریفرنس ڈھونڈیں میرے بھائی, ٹینشن نہ لیں, کھلا ٹائم ہے آپ کے لیے سر. بلکہ بھائی اگر سے آپ مسئلہ کو بتایا ایک کہ سمیر جنم صاحب, اور اگر آپ کو 1-2 جنم اور چاہیے تو بتا دیں, ہم آپ کو 1-2 اور جنموں تک کی ٹائم دیں گے آپ کو. پورے 7 لالا سب جنموں صاحب کا سے ٹائم بڑا اصل دیں میں مسئلہ یہی ہے ایڈم صاحب کہ یہ بیچارے لوگ ہیں نا خود سے کبھی ریسرچ نہیں کرتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے وہ صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے, کیا لکھا ہوا ہے, کچھ نہیں کرتے, بس ایک آرٹیکل کدھر دکھ گیا ختم. بالکل. ویسے یہ تو ساحل صاحب کام میں نے خراب ہو لالا جی سے پہلے ہی منع کر دیا ہے کہ دیکھیے ریفرنس مت لیجیے, وہ دے دے گا, پھر بعد میں یہ نہ کہنا, میں پہلے بتا رہا ہوں آگ میں کودو نہیں, وہ دے دے گا. میں آپ کو پتا سر, میں ایسی حرکتیں کرتا رہتا ہوں, رسک لیں گے آپ, میرا تو دل کرتا ہے. مطلب آپ رسک لیں گے, ہے سر, چلیں فل رسک مال, کودے پھر آگ فل میں رسک بالکل. میں چلتا ہے آپ کا بھائی. میں نے تو منع کر دیا ہے, بندہ ابھی دے گا دیکھنا. بھائی مل گیا, میں اچھا بھائی مل میں گیا. تو فل رسک میں کھیلتا ہے بھائی, ہمارا تو کام ہی ہے رسک کھیلنا ہے. رسک کھیلنا. اچھا مین وائل یار مارس انکمنگ بھائی نے 50 ممبرشپ اور دی ہے, تو وہ 50 گفٹ جو آپ لوگوں کو یوٹیوب پہ دکھ رہا ہوگا, جن کو ابھی تک نہیں ملی ہے, آپ اس پہ کلک کر لے اور وہاں پہ آپ کو آپشن ایک آئے گا الاؤ فری ممبرشپ والا, انیبل کرنے کا آپشن آئے گا. دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ $سائن پہ کلک کر لے, جو آپ جہاں سے چیٹ کرتے ہیں نا, کمنٹ لکھتے ہیں, وہاں پہ ایک $سائن دکھے گا آپ کو, اس پہ کر لے, دین ممبرشپ پہ کر لے, پھر 3 ڈاٹس پہ کرے,
कॉर्नर में फिर इनेबल अलाउ मेंबरशिप पे करें और एक्टिव रहे लाइव चैट में, आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। इससे सबसे आसान तरीका है कि जो 50 ऊपर दिखा रहा होगा आपको, उस पे क्लिक करें और वहां से बहुत इजीली आपको ऑप्शन आ जाएगा अलाउ मेंबरशिप वाला इनेबल करने के लिए। वो सबसे आसान तरीका है, वैसे कर ले आप। आगे चले। सर वो भाई को तो ढूंढने दें, कोई और है तो पकड़ ले, नहीं तो हम जिसपे सुबह चलो से वीडियो की तरफ नहीं, जाते आपने कहा था ना, आप लोग ने कहा था ना कि बहुत कोई एक आपको मतलब वो ताइफ का तो मतलब स्टोरी पता होगी ना, जब उनको स्टोन्स सर भेजा गए थे बुढ़िया रसूलुल्लाह कूड़ा को। फेंकती थी, वो चाहिए अभी। वो मैं आपको दूंगा, लेकिन मुझे मतलब नहीं अभी प्रॉपरली तो वो मैं चाहिए भाई, आपको भाई वो बुढ़िया चाहिए नहीं, मुझे सर आज। आप तो ये ताइफ के स्टोन वाला ले लो ना, मतलब नहीं ताइफ के स्टोन वाला क्या ले लूं? ताइफ के स्टोन के टाइम पे मोहम्मद जो था वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने गया और ग्रुप ऑफ पीपल ने उसे मारना शुरू किया। मोहम्मद के पास फौजें नहीं थी, मोहम्मद उनके साथ कुछ कर नहीं सका। अगर फौज होती, पावर होती तो फिर कुछ करता ना। उस टाइम पे तो उसके पास फौजें ही नहीं थी, पावर ही नहीं थी, तो वो कुछ नहीं कर सका बेचारा, मार खा के आ गया। बुढ़िया दिखाएं मुझे, बुढ़िया बुढ़िया चाहिए मेरे को। भाई अगला जन्म भी ले लोगे समीर साहब तो कूड़े वाली बुढ़िया आपको नहीं मिलेगी भाई। नहीं सर, 3 जन्मों का मौका दें सर साहब, खाली एक जन्म चलो नहीं सही। 3 जन्म ले लो, आपको नहीं मिलेगी। 3 जन्मों तक कम कूड़ा ही बेर दिखा दे मिनिमम। लाला जी, अगर बुढ़िया हटा दे वो कूड़ा ही दिखा दो जो नबी पे गिरा था। नहीं सर 3 जन्मों का मौका दें यार, आप लोग बहुत बदतमीज लोग हो यार, आप मौका नहीं पूरा देते यार, पूरा मौका तो दो। चले बहुत बुरी बात है यार, इस्लामोफोब लोग मौका ही नहीं देते यार, पूरा सॉरी मौका दो यार हमारे भाई को। सॉरी, पूरा मौका दे सर। ठीक है भाई, 2-3 जन्म। भाई का लगता है इंटरनेट गया। चलो अपन वो वीडियो कवर कर लेते हैं। तो अमित वो वीडियो लेके आ जाओ। हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। हाँ, क्योंकि वो 2 टॉपिक कवर करना है, एक तो ये वीडियो वाला और दूसरा वो हूर वाला भी कवर करना है। हाँ हेलो आ गया समीर, भाई तू रुक आवाज। जा भाई, थोड़ा भी सबर कर। तू कूड़ा ढूंढ, तू कूड़ा ढूंढ, उतनी ओके देर में हम ठीक जरा वीडियो कवर करते हैं, तू उतनी देर में कूड़ा ढूंढ। ठीक है, मैं स्टार्टिंग से लगाऊं या जितना चालू था उसके आगे से लगाऊं? यार हमने 3 बातें की थी सर। एक पहली बात इसके अंदर उसने कहा था कि मैं इसको मार रहा हूँ, तो आप ऐसा करें कि कोई 15 सेकंड के बाद से लगाएं ताकि जरा अच्छा, रिमाइंड हाँ। हो जाए। उससे पहले साहिल भाई एक वो बर्थडे विश करना था, उनका दिन निकल जाएगा, पहले कर दो। हाँ यार क्या बाद में था करते भी, लेकिन दिन शुरू हो चुका हुआ है, अगला दिन शुरू हो चुका हुआ है। हाँ चलो हाँ, इसके बाद कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। ठीक। ये पहले भी हमने लगाओ। बहुत तोड़ तोड़ के किया तो गेम खराब हुई है, इसको जरा 10-15 सेकंड से चलाएं। सलाम सलूम नहीं सुनना मुझे इसका। स्टार्टिंग एकदम स्टार्टिंग। यहाँ से चलो। यहाँ से लगा। अल्लाह ताला की बरकत से मैंने उस हरामजादे को मारा है, इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाल्लाह। बस ये पहली वो बात, मरेगा। पहली बात मैंने उसको मारा है और इंशाल्लाह वो बचेगा नहीं। पॉइंट नंबर 2 आगे चलाएं। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे बस कि हुकूमत इंशाल्लाह जो भी मार है, देंगे, जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाल्लाह मार देंगे जो भी नबी को कुछ गलत कहेगा। आगे पॉइंट नंबर 2। योगी की है नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है, इंशाल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज्जत व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने जानो माल ये point इज्जत भी व था। आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। इज्जत और आबरू, जानो माल तो कुर्बान करोगे, उस जमाने में उन्होंने इज्जत और आबरू भी कुर्बान की थी, अपनी बीवियां भी कुर्बान की थी, अपनी बेटियां भी कुर्बान की थी। अबू बकर ने 9 साल की बच्ची कुर्बान की थी, जाहिद ने अपनी बीवी कुर्बान की थी, हफ्जा और सफैया ने अपनी जानें कुर्बान की थी, अपनी इज्जत और आबरू कुर्बान की थी, जवेरिया ने अपनी आबरू कुर्बान की थी। और अगर आप इसको देखते हैं और क्या जाते यार, इट्स अमेजिंग
कि किस इब्ने अब्बास ने अपनी आबरू कुर्बान करने की बात पे एक्सेप्टेंस दी थी। इब्ने अब्बास जब वो अपनी दूध पीती बेटी को मोहम्मद ने देखा था तो उसने भी कुर्बान करने को ओके कह दिया, यस नबी, जैसे ही बड़ी होगी तो ले ली, इसके साथ टिंगी टिंगी कर ली। सो इज्जत तो आबरू उस जमाने में भी कुर्बानी हो रही थी, आज के जमाने में भी कुर्बानी होती है कि नहीं होती हैं, पता नहीं कैसे करेंगे ये, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है करें। आगे सर। वो डासना का रंडी का बच्चा, कोठे की पैदावार, हरामजादे आ रहे हैं हुजूर दे गुलाम तेनू बताने। हाँ स्टॉप। अब आपने देखा कि लोग कहते हैं यार देखो हम तो सबकी इज्जत करते हैं, हम तो सबसे प्यार करते हैं। वो अब आपने इनकी खूबसूरत जुबान से बेहतरीन कलमात सुने जो कि कुरानिक हैं और अबू बकर के कलमात से कम हैं और कुरान के कलमात के मुताबिक हैं और नबी के कलमात के करीब करीब हैं। प्लीज आगे। एडम भाई, ये दासना का रंडी का बच्चा जिसको बोल रहा है वो यति नरसिंहानंद करके एक स्वामी जी है, उसके बारे में बोल रहा है कि उसको भी मारेंगे। जी जी अभी आगे चले ना, अभी वो बताते हैं, वो सारा बताएगा ये। तेनू दसना है हुजूर दे गुलाम कैसे होते हैं। या खादिम हुसैन रज़वी, आपने फरमाया था अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे, और मैं दिन रात फरमाओ एक कत्ल नहीं करना दुश्मनों ने। अल्लाह की राह में निकलो फरिश्ते आएंगे। अब जब फरिश्ते कैसे आएंगे अभी हम देखेंगे, अभी ये फरिश्तों के गिर्द खड़ा होकर क्या बोल रहा है वो अभी हम देखेंगे। तो अभी फरिश्ते आने वाले हैं बेटा, फरिश्ते आएंगे तेरे पास, फिर देखेंगे तेरा लहजा क्या है। आगे। और दूसरा एडम साहब, दूसरी बात ये कि ये जो है वो लंगड़ा खादिम रिजवी का बहुत बड़ा मुरीद है, तो वो पॉइंट भी आप याद रखिएगा। हाँ खादिम रिजवी का तो फुल मुरीद है ना, क्योंकि खादिम रिजवी तो उसने अपने नाम मुंह से ले लिया यार, उसकी बातें मुंह से ले रहा है। तो अभी अरे हाँ वहां पे अभी अगली गेम भी चल रही है। जी जी आगे सर आगे। लाशों दे ढेर लगा देने हैं इंशाअल्लाह। लाशां दे ढेर, या रसूलुल्लाह, लब्बैक क्या या रसूलुल्लाह। लाशां दे ढेर लगा देने मतलब लाशें बिछा देनी है, ढेर सारी लाशें दे देनी है, ये पंजाबी में बोला है, लाशों के ढेर लगा देगा ये। जी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी मुक गया। चुम्मा चुम्मी अब भी हो गई। अब जनाब फरिश्ते आए, फरिश्तों ने इसको पकड़ा और अस्पताल के बिस्तर के ऊपर। साहिल साहब मुझे अब इनकी वो वाला डायलॉग चाहिए, मैं बड़े दिनों से इंतजार कर रहा था उस डायलॉग का, मिल गया। कौन सा वाला? अब वो बिस्तर वाला डायलॉग चलाए ना साहिल भाई, आपको वीडियो भेजी हुई है साहिल साहब, वो अच्छा, चलाए ये साहिल साहब। हाँ ये आ अब गई। ये सर ये 200% वीएल प्लेयर का 200% कर दें वॉल्यूम। हाँ 125% मैक्सिमम है। बस ठीक है, मैंने नीचे से भी खींच दी है वॉल्यूम इसकी, खोले सर। अब अरे यार मेरे को भेजना था वीडियो, आवाज बहुत स्लो आ रही है यार ये साइड एडम एनहांस को वाली पढ़ाया चलाई हुआ है, है। जो मैंने एनहांस की, ये वो वाली है। हाँ ये वो वाली है, डाउनलोड की हुई। दोबारा से चलाएं जरा, ये वो तो मैंने काफी एनहांस की है, इसको फिर कम है। या आपके वहां से चला देना, अगर पीसी के पास है आपके उसमें ज्यादा आवाज है तो वो ले लो। ये वही वाली वीडियो डाउनलोड किया मैंने। ओके रुको, मैं इसको दूसरे तरीके से, मैं इसका कोडेक चेंज करता हूँ, तो इसको कोडेक चेंज करके मजीद एनहांस करता हूँ। थोड़ा सा आप भाई से बातें कर लें और मैं जरा इसका कोडेक चेंज करके इसे एनहांस करता हूँ मजीद, फिर चलाता हूँ। 2 मिनट दें मुझे। जी जी। साहिल साहब ये मारा गया हमारे साथ फ्रांसिस भाई भी जुड़ चुके हैं। फ्रांसिस भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। हेलो ब्रदर्स, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फ्रांसिस भाई। इट्स ऑलराइट। आप कैसे हैं? सब ठीक हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक सब है खैरियत से हैं। ओके गुड। आप अपना बात करें, इसके बाद फिर मैं आपसे भी, आप सबसे बात करनी है इसके बाद। आप डन जी। समीर साहब आपको मिलते हो। कूड़े वाली हदीस मिली भाई? जी नहीं, मैं लेकिन मुझे मतलब दूसरा, मतलब आप लोग ने पूछा था ना कि इस्लाम की थ्रो पनिशमेंट क्या है, तो आप नहीं, सूरह अरे अहज़ाब 61 में देखिए। अरे भाई पहले वो कूड़े वाली नहीं, बात मुझे वो आपने तो नहीं इसलिए मिली। की थी। नहीं, क्यों मुझे नहीं उसका मिल रही रेफरेंस है? नहीं मिला। आपके मतलब आपके उलमा जो बताते हैं वो झूठ बताते हैं। जी
झूठ नहीं मतलब देखिए मतलब बहुत सारे मतलब स्टोरीज होते अरे हैं यार मतलब अब मैं मतलब उसको देखिए गूगल पे मतलब क्या कैसे होता है सर्च करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मैं पूछ रहा हूँ देखिए मतलब क्या होता है, नहीं मिली है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। हाँ अच्छा ठीक है चलो मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ नहीं है वो ठीक है लेकिन आप ये आपने जो मानते हैं पूछा कि था ना कि आपने भी जिस पनिशमेंट क्या है मौलवी से, ब्लास्फेमी की। अरे रुक जा भाई, एक एक पॉइंट। जी क्या आप इस चीज ओके को मानते हैं कि आपके मौलवी हजरात जो है वो झूठ का सहारा लेते हैं इस्लाम को अच्छा बताने के लिए? नहीं देखिए ये बात तो मतलब अब जैसा कि मैं गूगल पे नहीं सर्च कर पाया तो ठीक है मैं इस चीज के लिए तो एग्री करता हूँ लेकिन ये एक ही स्टेटमेंट के लिए कि ये चीज तो उन्होंने गलत कही। मतलब धोखा देते हैं ना। अरे भाई, एक अगर धोखा दिया, जब एक दरवाजा खुल गया तो मतलब कई सारे दरवाजे खुल खुल सकते हैं। अभी यार अमित आपने नहीं तो हो तो रही। ऐसा जो जो हम, तो नहीं देखिए सुनो, अब जैसा कि दूसरे समीर रिलीजियंस समीर में भी है बहुत समीर सारे लोग गलत समीर भी कहते हैं ना कि जैसा कि समीर जी तो हर कोई समीर तो सही नहीं हो सकता ना। समीर, आप पढ़े लिखे हैं प्यारे भाई? जी कितना पढ़े हैं? मैं बीटेक फोर्थ ईयर में हूँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चल रहा है अभी दुआ करिए पास बी हो जाऊं। टेक फोर्थ ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आप खुद जी सोचो कि आपने इस्लाम को तो पढ़ा नहीं। जी नहीं पढ़ा मैंने। नहीं पढ़ा, राइट? आप किसी के जी भरोसे पे हो, मुल्ला मौलवी के। जी जी बिल्कुल उसी मैंने मुल्ला आपको मौलवी स्टार्टिंग में ही की, बात बताई थी ना कि बिल्कुल ये चीज होती है इस्लाम में और हर रिलीजन में कि जो अच्छा एक मतलब तो सेकंड जो मेन लोग हैं आपने ना भाई, एक वो सेकंड। लोग इस्लाम, धोखा देकर इस्तेमाल करते हैं हम लोग को के समीर यूज साहब, ओ करने भाई के लोग, लिए समीर एक हमारे सेकंड। साहब, फीलिंग। अरे ओ रुक भाई के एक क्यों नहीं सेकंड, बात करता भाई? भाई एक सेकंड, सारे एक सेकंड। अमित, अमित, मिल गया, मैं करता ए, हूँ डिस्कॉर्ड देख यार, वो मेरे से नहीं हो रहा, उससे ज्यादा जितना मैंने किया इससे मैं ज्यादा नहीं हो करता रहा, हूँ तो इन्हें सॉफ्टवेयर में देख। लेके आता हूँ। ओके, ओके। जी सर, सब कंटिन्यू, सॉरी यार। हाँ, तो समीर जी साहब, सर आपने तो चेक नहीं किया हुआ इस्लाम को, जी जी बिल्कुल है ना? तो मसला यहाँ पे ये जी आ गया है कि एक बात अगर आपके मौलवी ने झूठ बोली है तो बहुत सारी बात जी भी झूठी हो सकती है। आपने तो वेरीफाई किया नहीं। ओके मैं एग्री करता हूँ हो सकती है। तो बिना वेरीफाई किए आप इस मजहब में क्यों टिके हुए हैं जनाब? मैं मतलब कुरान पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन के साथ तो मुझे ये चीज को जैसा कि आपने अभी पूछा था ये वेरीफाई नहीं किया था मैं लेकिन दूसरे क्या बहुत सारी कुरान चीजें आपने हैं जो पूरा मैंने पढ़ा है ट्रांसलेशन के साथ? जी मैंने बहुत बार पढ़ा है। पूरा? रमजान में वगैरह हम लोग पढ़ते हैं जी। नहीं नहीं, पूरा तो वैसा पढ़ना ट्रांसलेशन के नहीं पूछ साथ रहा हूँ नहीं। भाई। जी भाई फिर चालाकी की जी आपने। मैंने ट्रांसलेशन के साथ जैसा कि चैप्टर्स होते हैं ना 10-15 तो पढ़े हैं मैंने। सर, फिर चालाकी कर दिया ना आपने। जब मैं आपसे ये पूछा हूँ कुरान पढ़ा क्या, ऑब्वियसली मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ट्रांसलेशन के साथ पढ़ी है क्या? आपने वहां पे जी जी चालाकी कर 15 दी, हाँ 15 पूरा पढ़ा हूं चैप्टर्स मैं। नहीं नहीं मैं वो नहीं समझा था सर मैं 15 चैप्टर्स भी ट्रांसलेशन पढ़ चुका हूँ लेकिन जी है ना? एकदम मतलब मतलब याद आपने, तो नहीं है हर चीज रेफरेंस के साथ लेकिन अपने आप से मैंने वेरीफाई किया है। मैंने मतलब अरे पहले रुकना मुझे भी भाई, डाउट होता तूने था कि आर्टिकल देखा है? तूने आर्टिकल देखा है अभी? नहीं ठीक है आप मेरी बात सुनो मुझे मतलब पहले बहुत डाउट होता था कि इस्लाम सही है नहीं है मैं बहुत कंफ्यूजन में रहता था। फिर मैं मतलब समीर, मैं सोचता था कि समीर, शायद क्रिश्चियन भी सही होगा हिंदुइज्म भी सही समीर, होगा अच्छा, तो फिर 15 मैं चैप्टर से, मतलब 15 चैप्टर से किस तरह पता लग गया इस्लाम सही है? 15 चैप्टर में क्या ऐसी चीज है जो तुम्हें पता लग गई कि इस्लाम सही है? जल्दी से बताना मुझे। तो नहीं मतलब मुझे भाई मैंने इससे सिंपल अच्छा सी तो बात कोई की है दूसरा भाई, आपने रिलीजन 15 नहीं चैप्टर दिखा। पढ़ लिए ट्रांसलेशन से। भाई आपने मुद्दा दिया, आपने 15 चैप्टर पढ़े हैं ट्रांसलेशन से, और आपने क्या उससे आपको पता लग गया इस्लाम सही है? क्या ऐसी बात 15 चैप्टर जी में आपने मतलब पढ़ी है कि उससे पता लगा इस्लाम सही है? जैसा कि मतलब इस्लाम में लिखा हुआ है कि जो एंड टाइम्स है उसमें बहुत सारे खराब चीजें 15 में, होंगे और 15 उसमें चैप्टर के जो अंदर एंड टाइम, 15 चैप्टर के अंदर एंड टाइम की प्रिडिक्शन दिखाएं मैं मुझे। आपको 15 चैप्टर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाई आपको ये मैंने कह रहा आपसे हूँ कि मुझे सवाल, किस चीजों एक से सेकंड, लगा कि मुझे ये इस्लाम बैक स्टेज। भाई जो आप मुद्दा प्रेजेंट करते हैं ना, उसको उस तरीके से प्रेजेंट करें कि आप उसके अगेंस्ट आंसर दे सकें। आपने क्या, आपने 15 चैप्टर पढ़े, उसकी वजह से आपको पता लगा इस्लाम सही है। मुझे 15 चैप्टर में से जवाब दें कैसे पता लगा, प्लीज। क्या क्या पता लगा। कि इस्लाम सही है, कुरान के पहले 15 चैप्टरों में से पता लगा आपको इस्लाम सही है, कैसे?
भाई मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मतलब मैंने जो चीजें पढ़े वेरीफाई की, मुझे पता लगा कि बहुत सारी चीजें जो भाईजान, इस्लाम में कही गई वो भाईजान सही है। क्या पढ़ा है 15 चैप्टर में कि जिससे वेरीफाई किया आपने? मैंने यही वेरीफाई किया था कि जो हम लोग का अभी जो कोविड आया था ना, ये मतलब हमारे कुरान इस्लाम में के लिखा 15 हुआ है चैप्टर में कि कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन है? किस चीज के बारे में? कुरान के 15 चैप्टर में कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन है? कोविड के बारे में नहीं, मतलब कि बहुत खराब डिजीज आएगी जो लोग उससे बहुत सारे परेशान कुरान होंगे। के 15 चैप्टर में ये लिखा हुआ है। ओके, दीजिए मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए, कहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़ी खराब डिजीज आएगी? अच्छा मैं देखता हूँ। लेकिन साहिल साहब, 15 चैप्टर में कुरान में लिखा हुआ है, वो हमें आज पता लगेगा कि डिजीज आएगी। लेकिन भाई से अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि गूगल पर आप सर्च कर रहे हैं तो लास्ट में मैंने जो चीज भी सर्च करें लास्ट में लिखे जल्दी भेजो, तो वो जरा जल्दी भेजता है। हाँ, ऐसा करके देखें। अच्छा वो भी या आप जरा एडम साहब, लेट अगर इसको आप पूछ लेते तो ये स्टार्टिंग के 15 चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, लास्ट के 15 पढ़ा होगा। स्टार्टिंग के तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है भाई। भाई मैं मतलब अच्छा, स्टार्टिंग के आखिरी के ऐसी बात नहीं है, मतलब मुझे चैप्टर का नेम अच्छा लगता तो बीच में से भाई, पढ़ लेता था मैं चैप्टर का नेम, और मतलब उसकी जो ओ समरी भाई, होती। ओ भाई, ओ भाई, जी ओ भाई, जो आपको क्या है वो करें, हाँ। जो आपको क्या है वो करें। क्या लाने गया अभी ये? कि पहले कि बहुत बड़ी डिजीज आने वाली है, कोविड आने वाली है। ये है कुरान में? जी जी। भाई मैं तो इस्लाम कबूल करने वाला हूँ। वल्लाह मैं 2 हबीबी। बार करूंगा, डबल करूंगा। एक बार टूट भी जाए बाई चांस किसी तरीके से धोखे में आके, तो एक अरे बार ये करा। साहिल भाई, ये यूट्यूब वाला मुस्लिम है। ये कुरान जब ये कोरोना आया था तब इस्लामियों ने बड़े वीडियो बनाए थे। ये यूट्यूब यूट्यूब पे ये उल्टे पुल्टे बयान सुन के मुस्लिम बना हुआ है। जी मैंने देखा, ये मतलब कुरान में नहीं है लेकिन इस्लाम के जो एंड टाइम्स जो कुरान में मतलब नहीं रसूल ने कहे है, थे कुरान उसमें। में नहीं है। बैक स्टेज कुरान में, साहिल साहब कुरान में नहीं है। साहिल साहब वाह, कुरान में नहीं है। हमने इस्लाम कैंसल कबूल नहीं करने का। बचत हो गई, बचत हो गई, कैंसल बचत। कैंसल। ओके, तो दिए। ओके समीर साहब, अब हदीस में दें, अब हदीस में दें। नहीं नहीं, आपको मैं कुरान कर दूंगा, ठहरिए आप नहीं, जैसा कि पहले ये कहा वाली, कि अच्छा अभी कुरान। तो आपने कहा हदीस में नहीं है। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए, नहीं मैं चेंज कर रहा हूँ टॉपिक को। आपने कहा नहीं कि नहीं नहीं नहीं, टॉपिक चेंज नहीं कुरान कर से सकते, मतलब कुछ टॉपिक चेंज नहीं ऐसा। होगा। हेलो हेलो, टॉपिक चेंज ही नहीं होगा। अब डिजीज मुझे हदीस से दें आप। अब हदीस से डिजीज दें मुझे आप, ये ले क्या हदीस से दूं? नहीं मैं आपको कुरान से डिजीज। दे रहा हूँ ना, आपको कुरान से चाहिए, आपने कहा था ना कि मुझे कुरान क्या में लगा जो अभी मैंने आपने कहा आपको कुरान में नहीं है, अभी आपने कहा कुरान में नहीं है। तो नहीं, मैं दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ ना आपको। नहीं वो बात में पॉइंट, पहले एक पॉइंट खत्म करते हैं। कुरान में ये चीज है कि भाई एक सेकेंड, टॉपिक जो एक शुरू किया है पहले उसे फिनिश करें। आपने कहा है कुरान में नहीं है, लेकिन आपने साथ में एक टमकीरी मार दी थी लास्ट स्टेटमेंट पे कि ये नबी की बात में है, तो लिहाजा अब आप मुझे हदीस दें पहले, वरना कहें कि नबी की बातों आप में भी नहीं है। दें। नहीं, आप एक चीज को मत पकड़े, मैं आपको दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। सर मैं कह जी रहा हूँ कि मुझे दो एक चीज है जो चीज, अलग। भाई जो बात आपने की है ना, या तो उसका डेटा दो, या कहो कि तुमने झूठ बोला था, यू आर सॉरी। सो मुझे जल्दी से उसका डेटा दें प्लीज, वरना सॉरी करें। किस चीज का डाटा दूं मैं आपको? कि हदीस में मोहम्मद ने बताया हो ये जो बड़ी सी डिजीज आनी है। अच्छा ठीक है, जी दें जी, मेरा प्यारा भाई। नहीं साहिल भाई, हमारा प्यारा भाई हमें देने लगा है, बहुत जबरदस्त। साहिल साहब आपको आज यकीन हो जाएगा कि नबी को फ्यूचर का पता था। साहिल साहब एडम भाई आज आप नबी की फ्यूचर प्रिडिक्शन की वजह से इस्लाम कबूल करेंगे साहिल भाई। आज आप बुरा फंसने वाले हैं एडम साहब, सोच लें। मैं कहता हूँ सर, मैं कहता हूँ साहिल भाई आज इस्लाम कबूल करके रहेंगे। साहिल एडम साहब लाइफ में और क्या चाहिए फिर?
میں لائف میں اسلام قبول کیا تو جنگا لالا. देखो भाई को कूड़े वाली बुढ़िया नहीं मिली, कुरान में कोविड नहीं मिला, अब हदीस में देख लेते हैं. अब हदीस में कोविड देखते हैं. भाई वो मर गई कूड़े वाली बुढ़िया तो कहाँ मिलेगी? अगर ये टाइप करते कूड़े वाली बुढ़िया जल्दी भेजो, ऐसे टाइप करते पूरा सेंटेंस तो आ जाती भाई. वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी. आप वो अपने जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखे कूड़े वाली बुढ़िया के रेफरेंस जल्दी भेजो. हाँ अभी जरूरत है. अभी जरूरत है, फौरन भेजो. फौरन कमन फास्ट. मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि गलत था. मैं आपको दूसरी चीज बता रहा साहिल हूँ. भाई उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो गलत थे. साहिल भाई उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो गलत थे, उनको नहीं पता था. साहिल भाई एक्सेप्टेंस आ गई, अब क्या करें? साहिल भाई एक्सेप्टेंस आ गई, उन्होंने कह दिया गलत थे. मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जो समंदर है अलग अलग कलर अरे भाई वो नहीं मिलते, मेरा वो कंबाइन नहीं करते. ये कुरान में लिखा हुआ है. अरे ओ रुक जा भाई भाई. सबर टेक अ चिल. अब मैं कुछ दिखा दूं, अब मैं कुछ जी दिखा दूं. दिखा दी. ये देखो सही बुखारी की क्या हदीस है, तुम्हारे नबी ने क्या कहा है? अल्लाह मैसेंजर सेड, अबू हुरैरा कह रहे हैं, सही अल बुखारी की हदीस है, देयर आर एंजल्स गार्डियंस द एंट्रेंस ऑफ द मदीना. मदीना की एंट्रेंस पे एंजल्स हैं जो गार्ड करते हैं. नाइदर प्लेग बिल्कुल. नोर अर दज्जाल विल बी एबल टू एंटर इट. कोई भी प्लेग या दज्जाल मदीना दाखिल नहीं हो सकता. जी मानते हैं आप? ओके जी. ये लो पकड़ो कोविड-19 मस्जिद नबवी के अंदर नहीं 8-8 फुट दूर रह के तो नमाज पढ़ रहे हैं जिस प्लेग वक्त. प्लेग का मतलब सबर सबर बंदर के तुखम सबर. ये देखो जरा कि कोविड-19 आया और मोहम्मद ने कहा था सफों में कंधों के साथ कंधे जोड़ के खड़े हो, इतना फासला ना रखो कि शैतान बीच में घुस जाए, क्योंकि अगर सफ लेकिन के सफ जी में बिल्कुल, लेकिन सफ अगर में बीमारी के यार टाइम पे कितना बेगैरत शख्स है अरे यार, ये बंदा बीच में बोलता है, रुक जा. बहुत बेगैरत शख्स है. क्योंकि अगर कंधों से कंधे नहीं जुड़े होंगे तो बीच में शैतान आके खड़ा हो जाएगा. और यहाँ पे आपने 6-6 8-8 फुट का फासला रख लिया. साहिल साहब कितने शैतान आगे खड़े हुए होंगे यहाँ पे? अनगिनत. अनगिनत. और ये प्लेग जो थी कोविड-19 की वो यहाँ पे घुस गई. ये तस्वीरें हैं मदीना की, ये सरकारे मदीना की तस्वीरें हैं. लोग एक दूसरे से इतनी दूर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, मां मरी हुई है इनकी. और तो और साहिल साहब उमरा बैन हो गए थे बहुत अरसे के लिए, 3 से 6 महीने के लिए उमरे बैन थे. हज की परमिशन नहीं मिली 2020 के अंदर. लोगों को सिर्फ और सिर्फ गिनती के लोग हज पे गए, बाकी हज भी बंद था. सर जी कोविड जो है मक्का मदीना दोनों के अंदर चला गया. हाँ जी अब समीर साहब. मदीना अलग चीज है, उम्रा अलग जगह होता है. उम्रा अलग जगह है वो. अबे डंगर मक्का इसलिए मैंने बोल दिया है. मदीना की तुम बात को, तुम मक्का को छोड़ दो, वो मैं और साहिल बात कर रहे थे. ये मदीना मस्जिद नबवी, ये तुम्हारे सामने तस्वीर उसकी बात है ना. आपने कहा कि डिस्टेंस क्यों लेके ठहरे हुए, तो मैंने कहा कि बीमारी के टाइम डिस्टेंस लेके ठहरते हैं, नॉर्मल टाइम में तो हम लोग साथ में नमाज पढ़ते हैं. हदीस दो, हदीस देखो दो, कांधा टच किया. हदीस दो, किस चीज की हदीस दो? बीमारी जब आ जाएगी तो आपने डिस्टेंस पे रख के नमाज पढ़नी. दो हदीस. नहीं ये मतलब पूरी दुनिया के लिए प्रिंसिपल आया था. नहीं भाई एक सेकंड, प्रिंसिपल आया था जो मोहम्मद को नहीं पता था. मोहम्मद ने कहा था कि कंधे से कंधे जोड़ के नमाज पढ़ो. अगर तुमने कंधे से कंधे नहीं जोड़े तुम्हारे बीच में शैतान आके खड़ा हो जाएगा. मोहम्मद ने वहां पे ये नहीं कहा था एक्सेप्ट अगर बीमारी फैल जाए, उसने नहीं कहा था. अब बात यह है कि मोहम्मद को नहीं पता था कि बीमारी फैलती है, और मोहम्मद को यह भी नहीं पता था कि बीमारी जो है वो छूत की बीमारी भी होती है. फॉर एग्जाम्पल एक हदीस है, मोहम्मद ने कहा था कि तुम ऊंट को दूसरे ऊंटों से दूर क्यों कर देते हो, इस बीमार ऊंट को, जिसको बीमारी आनी है वो लग के रहेगी. उस बंदे ने वो ऊंट अपने रेवर में डाल दिया, सारे के सारे उस बेचारे के ऊंट मर गए. तो ये भी हदीस है. सो मोहम्मद ने जब भी साइंस की कोई भी बात की है ना, वो साइंस के खिलाफ की है. नाउ वंस अगेन अभी सिर्फ मुझे ये हदीस दे दो
کہ محمد نے کہا ہو کہ اگر بیماری آ جائے تو ایک دوسرے سے دور رہ کے نماز پڑھو. میں نے یہ بات کہا ہی نہیں کہ محمد نے کہا ہو. آپ میری بات سنیں ایک منٹ. دیکھیے پروفٹ نے یہ بھی کہا کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا فرض ہے, لیکن یہ کہا کہ جب بارش ہو زیادہ یا کوئی پریشانی ہو تو نماز نہیں پڑھنی چاہیے مسجد میں, لیکن نارمل ٹائم کے لیے ہم لوگ. جلدی سے یہ بھی حدیث دے دو مجھے کہ اگر بارش ہو تو گھر میں نماز پڑھنی چاہیے. یار یہ لوگ کہاں سے ڈیٹا لے کے آتے ہیں ساحل؟ یہ کون سی واٹس ایپ یونیورسٹی چل رہی ہے کہ بارش یہ ہو تو اپنے گھر میں مرضی نماز کا پڑھ کچھ لو؟ بھی لے کے آتا ہے. یہ کون سی حدیثیں بولی جا رہا ہے؟ بول رہا ہوں نا یہ ہاں بھائی. یوٹیوب والا طوفانی والی مومن ہے. بارش. ہاں ایڈم بھائی یہ یوٹیوب کے یوٹیوب والا مولانا مومن ہے. ذرا مجھے یہ حدیث دے دو کہ بارش ہو تو گھر میں اچھا نماز پڑھنی ٹھیک ہے, چاہیے. یہ بھی حدیث دے دو. طوفانی والی بارش میں. اچھا ہاں چلو یہ دے طوفانی دو, والی بتا دیتے. طوفانی والی بارش میں گھر میں نماز پڑھنی چاہیے. یہ حدیث دے دو. جو اور چیز ویسے پتا وہ بھائی دے دو. اپنا 4th ایئر بی ٹیک میں ہے کمپیوٹر سائنس, اس کا دماغ ایسا چلتا ہے سوچو. یہ کون سے بی ٹیک میں ہے یار؟ نبی نے یہ یار کہا ہے کہ جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے میرا دل کرتا ہے کہ ان کے گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. آگ لگا دوں. یار ساحل یار کمال ہے یار, یہ بندہ حساس آ کے اس نے کامیڈی شو چلا دیا یار. بار بار بات پہ بات ماری جا رہا ہے اور کسی کا ریفرنس نہیں ہے اس کے بعد. پریانشی جی ہاں کہہ رہی ہے آج نئی نئی حدیث سیکھنے کو مل رہی ہے. اچھا یہ والی حدیث لالا جی دکھا دیں کیا کہ نمازی کے درمیان خلا نہیں ہونا ابھی چاہیے نہیں ورنہ ابھی بھی نہیں ابھی نہیں شیطان ہوتا ابھی نہیں ہے. ابھی اوکے نہیں ابھی نہیں. اس کو جو چیز اس کو پتا ہے اور وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر رہا تو کیوں اس کے زیادہ اس میں جائیں. بہتر. میں اپنا ذرا ریموو کر رہا ہوں اس لیے لگا. اف توبہ یار آج تو مزہ ہی آ گیا یار. ہلو, ہاں ہاں جی بول بھائی. میں آپ کو حدیث نمبر دے رہا ہوں, آپ لکھیے. اوکے میں سرچ کرتا ہوں میرے پیارے بھائی کے لیے. میں سرچ کرتا ہوں یار. جی صحیح بخاری والیوم 1 بک 11 نمبر 635. اوکے ایک سیکنڈ. صحیح بخاری جی والیوم 1 صحیح بخاری والیوم 1 بک 11 نمبر 635. جی 635. لو جی لو جی بنا بک 11 حدیث نمبر 635. اس میں کیا ہے؟ ایک سیکنڈ. لے جی ہمارے پاس والیوم 1 کی حدیث یہاں سے آئی ہے. لو جی نافع وغیرہ. once a very cold stormy night Ibn Umar pronounced that Aldan of the prayer and said, pray in your homes. He added, on very cold and rainy nights, Allah Apostle used to order Mujahideen to pray in your homes. جی سر کنہوں نے گھر میں پرے کرنا ہے؟ بھائی کی آواز کو ادھر گئی. مؤذن بھائی کی مطلب آواز مجاہدین نہیں, مؤذن مطلب جو اذان دیتے ہیں نا ان کو. مؤذن ہاں جی اس کو کہا. اچھا جی اب کیا کریں؟ جی اس کو نہیں کہا, مطلب مؤذنوں کو کہا کہ سب سے کہا کرو کہ گھر میں نماز پڑھے جب مطلب بارش کا ویدر سب ہو سے یا بہت سرد ہو. جی سب سے بھائی, سب سے. صرف کہاں سب مؤذن سے کو لکھا نہیں, کیا ہوا مطلب ہے؟ مؤذن کو یہ لکھا کیا بتایا ہوا کہ ہے؟ سب کو یہ اوکے چلے جی ہم پرے ان ویری یور ہوم, کولڈ اذان دی نائٹ اور کہا. ویری ہاں ہاں ویری کولڈ نائٹ. یہ دیکھیں یہ میں آپ کو لے کے آتا ہوں sunnah.com میں تاکہ ہمارے پاس عربی سے ہم ویریفائی بھی کر سکیں. یہ دیکھیں مؤذن کو کہتے تھے کہ خود بھی گھر میں ہاں ہاں پڑھو. ہاں 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 پہلے تو اذان دی, پھر کہا گھر ارے میں بھائی پڑھو, پھر مؤذن کو بھی کہا گھر ہاں میں. ہاں 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 اوکے یہ لو. یہ حکم سفر کی حالت مجھے یا اردو سردی اردو برساتی مجھے راتوں اتنی میں تھا. اچھی نہیں آتی بھائی. اوکے مجھے اوکے اوکے اردو اوکے میں اردو اچھی نہیں آتی بھائی. یار ریلیکس ٹیک اے چل میری جان ٹیک اے جی چل. جی
तो मतलब बारिश, जैसा कि बारिश है, तूफान है, तो बीमारियों के लिए भी मतलब हमको, जैसा कि Okay. WHO ने मतलब फॉलो करने रूल्स दिए थे, तो WHO फॉलो ने करना फॉलो करने पड़ता का, है। तो आपने घर में पढ़नी थी ना, मस्जिद में जा रहे हो तो मस्जिद में जाके, यार ये मुझे इसके अंदर बहुत शक लग रहा है, मस्जिद में जाके आप क्यों कर रहे हो ऐसे? भाई वो लोग मतलब हज पे गए हुए थे मदीना में, आपको पता है कोविड के टाइम किसी आज को पे नहीं नहीं दिया है, जा रहा था आज पे पास। नहीं है, आज नहीं है, आज नहीं है भाई, आज नहीं है, प्लीज आज नहीं है। जो लोग, भाई आपको पता है जब से कोविड स्टार्ट हुआ किसी को नहीं दिया जा रहा था पास, जो लोग Okay. वहां पर ही थे वो लोग ही परफॉर्म कर रहे थे, फिर घर, आपको पता है कितने की दिन तक नमाज पढ़ना भी बंद हो गया था अच्छा मस्जिद भाई, में, एक मदीना सेकंड, की ओन अरे भाई मस्जिद में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ और सिर्फ रेनी नाइट्स के ऊपर है, रेनी और कोल्ड नाइट्स के ऊपर है, बहुत ठंडी रात, अरे तो आपने मुझे बहुत बारिश के ठंडी, ऊपर कहा, तो मैंने बारिश के ऊपर दिया ना भाई। हाँ ठीक है बारिश की भाई, आ रात गया एक, दे दिया तूने, आ चल गया, दे दिया एक। तूने क्लेम दे दिया, आ गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि मस्जिद में जाओ, लेकिन वंस अगेन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं है, ये खास रात के लिए है, मैं इसको सर्च करके तुम्हें बता दूंगा, लेकिन वंस अगेन ये रेनी नाइट्स के ऊपर है, रेनी और वेरी कोल्ड नाइट्स, यानी कि जी अंधेरी बिल्कुल। बारिश वाली रातों के लिए है, इसमें दिन का टाइम नहीं है और सफर की हालत में है। मैं इसके ऊपर मजीद रिसर्च करके तुम्हें दे दूंगा डाटा, मगर दैट्स सेपरेट। अभी जो मस्जिद में बैठे हुए हैं वहां पे क्या है वो बताओ, और वो रात भी मैं नहीं है, वही दिन तो की कह टाइम रहा है, हूँ ना, जोहर की अजान है, जोहर की अजान है। आप मदीना के बारे में बोल रहे हैं ना। सर जोहर की नमाज अभी आपको दिखाई है, रोशनी भी है, सब कुछ भी है, वो बताएं। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ आपको, मदीना में जो लोग ऑलरेडी एंटर हो गए थे उनके ओके अलावा दूसरों को साहिल एंटर साहब, नहीं ये जो किया ये दिया जो है ना, ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे है, ये देखें, कोविड के टाइम पे। जी, नहीं, अदान एंड इकामा शुड बी कोविड के, प्रोनाउंस्ड। भाई आपको क्या बताऊं मैं, कोविड के बाद सब एक साथ ही नमाज पढ़ते हैं साथ में ठहर के, वो सिर्फ कोविड के टाइम तक के लिए ही था, दूर खड़ा भाई होकर पढ़ना। हेलो भाई हेलो, हाँ, ड्रामेबाज, कहाँ पे लिखा हुआ है कि बीमारी जब फैल जाए तो आपने जमात में एक दूसरे से दूर जाके नमाज पढ़नी है? आप सिर्फ वो दे दें, बाकी मैं खुद ढूंढ लूंगा। लिखा हुआ की ठीक बात है, आप हटा दो भाई, जब बीमारी लिखा हुआ की बात हटा दो, अगर लिखा हुई की बात उठा दो तो फिर आज के बाद आप कोई हदीस प्रोक्लेम नहीं करेंगे मेरे साथ, आप कहेंगे कुछ और मैं कहूंगा कुछ, और हम दोनों जो है ना नबी के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपनी मर्जी से, अपनी बातों से। जी नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मतलब आप कंप्लीटली अब हर चीज आप मतलब रिलीजन के लिए फॉलो करोगे, दुनिया को छोड़ दोगे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना, आपको दोनों को साथ में लेके आ, चलना है ना। नहीं, दुनिया को कैसे, अगर जो मोहम्मद ने कह दिया उसको पूरा करना है, वरना नबी झूठा है, दैट्स व्हाट इट इज। किसने कहा आप नबी के बात पे फॉलो करने पे सवाब मिलता है एक्स्ट्रा, नहीं ना करो तो नहीं, कुछ गुनाह क्यों नहीं है, आपको किसने बताए, नहीं, आपको क्यों उसने बेसिक ही क्लियर नहीं कर, पता सर। अरे भाई, सर नबी की काम करने में ओके, तो फिर आप निकाहुल मुता भी किया करें, नबी की सुन्नत है ना कि उसने कहा था कि बंद कर दो निकाहुल मुता, ठीक है, कुरान में तो नहीं ना निकाहुल मुता का बना किया हुआ, तो फिर आप निकाहुल मुता भी कर लिया करो। जी समीर भाई। निकाह मुता क्या है मुझे नहीं पता। टेम्परेरी मैरिज, 3 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, 8 दिन की टेम्परेरी मैरिज, निकाहुल मुता। तो भाई वो लोग के लिए कुछ अलग केसेस होते हैं, कुछ अलग सिनेरियोज होते हैं, हर कोई, अगर मैं अब जैसा कि अब लोग कहते हैं ना हिंदू में कि पेशाब पी लो, ऐसा कर लो, शुगर कम हो जाती है, वैसा कम हो जाती है, तो उनका भी मतलब बिल्कुल, तो कुछ फिर उन लोगों ने मुसलमानों में सोचा कहते हैं ना, होगा कुछ। मुसलमानों में मोहम्मद ने भी कहा था ना, ऊंट का पेशाब पी लो, काम तो सेट वो हो जाता है। भाई वो टाइम के लिए ही था, उसके बाद कभी नहीं कहा, वो जब स्पेसिफिक बीमारी हुई थी ना, तो हर उसके लिए कहा चीज, गया था। कौन सी स्पेसिफिक बीमारी हुई थी? आपको, आप मुझे ऊंट के पेशाब के पीने के बारे में कह रहे हैं, फिर आपको उसका रीजन ही नहीं पता क्यों पीने, आप सर्च कर लिए आपको हाँ हाँ, पता चल जाए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, मैं बताऊं वो, जल्दी से बता दीजिए क्यों। हाँ अच्छा ठीक है मैं आपको बताता हूँ, वो हाँ, जल्दी से बताइए। वो ही स्पेसिफिक पीरियड और टाइम के लिए था वो पीने का। अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ है? मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ हाँ बताइए, मैं मैं अभी वेट कर आपको रहा हूँ। हदीस, जी जल्दी से लेके आइए मेरा प्यारा भाई। लें जी, हमें आज बहुत सारा कुछ पता लगने लगा है जनाब, आज भेद खुल जाएंगे सबके।
لا 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 لا